Hi guys, it's Atikur Rahman and I hope you all would be okay. Today we are going to discuss the traditional assumptions about the accounting model. So when you are preparing financial statements, so there are some assumptions stated by FASB. What does mean by FASB? Like FASB, which is replaced with IASB, International Accounting Standard Boards or Financial Accounting Standard Boards. So these Financial Accounting Standard Boards or International Accounting Standard Boards, they actually provide different kind of information and different kind of, they also issue different kind of bulletin and they follow different principles, and on behalf of that you are preparing financial statements. So if you are not following that principles, that standards, maybe you cannot communicate internationally across the border, across the entity. So you cannot communicate. So that's why there is a need to follow at least some standardized way. Then after this you can communicate without any boundary. So because we say the accounting is a business language. So FASB guys, they issue different kind of bulletins and like GAAP, they also give us some principles, some assumptions about the accounting system, about the accounting model. So when we are going to record all the information, we have to follow some principles, of which of some are here, and we are going to discuss those principles, those assumptions which you must keep in your mind. When you are accountant, when you are preparing some financial information, you must keep these things in your mind. So the first thing is guys, business entity. Business entity guys क्या होता है? आपके पास business is treated as a separate person. Business is a separate entity. Business is a separate person. और हमें ये assume करना पड़ता है. Accounting principles हमें ये जो है ना वो हमें FASB, हमारे पास different जो accounting standards या accounting bodies हैं, professionals हैं, वो हमें बताते हैं कि हमको business entity को as a separate person consider करना पड़ता है. अब जिस person ने वो business start किया है, उसकी अपनी भी तो ट्रांजैक्शन होगी, उसके घर में, उसके बाहर प्राइवेटली, तो वो जो प्राइवेटली वो जो काम कर रहा है, वो जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, यू कैन नॉट मिक्स अप दोज ट्रांजैक्शन विद योर बिजनेस. इसी तरह बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को यू कैन नॉट मिक्स दोज ट्रांजैक्शन विद द पर्सन्स प्राइवेट ट्रांजैक्शंस. तो आपको दोनों को जो है ना वो सेपरेट रखना पड़ेगा. सो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट बिहाइंड द बिजनेस एंटिटी. सो बिजनेस और द कॉर्पोरेशन, दैट इज अ सेपरेट पर्सन. ठीक है, आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट पर्सन है, उसकी अपनी एक एंटिटी है, उसका अपना एक वजूद है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है. आप उसके जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो उसी के नाम से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन करेंगे. आप उसकी ट्रांजैक्शन को जो सेपरेट, उसका जो ऑनर भी है इवन के, उसके साथ मिक्स अप नहीं करेंगे. तो दैट इज द बेसिकली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप इसको माइंड में रखें. अकाउंटिंग के अंदर हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये माइंड में रखना पड़ता है कि आप बिजनेस को सेपरेट कर देते हैं अपने जो है ना अपनी पर्सनल या प्राइवेट ट्रांजैक्शन से, ताकि बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो करता जाए, हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो प्राइवेटली करते जाए, हम उनको मिक्सअप नहीं करते. वरना जो एंड अगर आप मिक्सअप कर देंगे तो एंडिंग रिजल्ट वुड बी मिक्स्ड. यू कैन नॉट कंसीडर the ending result whether it is from my side or whether it is from business side. So you want to keep an eye on the business transactions. So purely all transactions should be there which are only related to the business. So that is basically the main concept behind the business entity. हमारे पास second concept है the guys going concern. तो going concern आपके पास एक ऐसा concept है, या इसको हम अकाउंटिंग के अंदर यानी अकाउंटिंग अजम्पशंस के अंदर हम इसको कंटिन्यूटी भी कहते हैं. ठीक है,
बाद लोग इसको कंटिन्यूटी कहते हैं, गोइंग कंसर्न कहते हैं। गोइंग कंसर्न होता क्या है कि आप अपने बिजनेस को फॉर द लॉन्ग टर्म लेके आए हो और आप ये समझते हो कि बिजनेस जो है ना हमारा, वो हमने अब इसको अगर एक पॉइंट में ले आए तो ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। दैट इज व्हाट गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ओके, तो गोइंग कंसर्न के अंदर आप अगर गोइंग कंसर्न की अजम्पशंस, मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास एसेट्स हैं। अकाउंटिंग के अंदर हर वो चीज एसेट है जो इकोनॉमिक बेनिफिट, रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं इन फ्यूचर, या लाइबिलिटीज हैं। ये एसेट्स, लाइबिलिटीज, अगर आपके पास गोइंग कंसर्न की अजम्पशन ना हो, आपने माइंड में ये ना रखा हो कि बिजनेस जो है ना फॉरएवर के लिए आया है और मेरे जो है ना इस अजम्पशन की वजह से मैं उसको डिसरिगार्ड करता हूं कि वो लिक्विडेट होगा या बैंकरप्ट होगा या खत्म हो जाएगा, तो आप बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ इन्फिनिट टाइम ऑफ जो है ना वो पीरियड के लिए आप लेके आए, इन्फिनिट टाइम है वहां पे। तो आप अगर ये गोइंग कंसर्न लेके ना आए तो हर चीज आपको जो बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रही होगी वो करंट तौर पे नजर आ रही है। आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये लॉन्ग टर्म की है, ये शॉर्ट टर्म की है। तो गोइंग कंसर्न वहां पे होता है, प्रिंसिपल या असम्पशंस होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिसकी बेस पे आप कैटेगराइज करते हैं कि एसेट्स जो है ना हमारे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर ये असम्पशन ना हो तो आपके सारे एसेट, लायबिलिटी, सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए बन जाती हैं। यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, यू कैन नॉट क्लासिफाई। सो दैट इज व्हाट द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। आपको जो है ना वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके आते हैं। आप लिक्विडेशन का कंसेप्ट उससे डिसरिगार्ड करते हैं कि वो हमारी लिक्विडेशन नहीं होगी, हमारा बिजनेस एंड नहीं होगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो चलेगा। तो इसको हम गोइंग कंसर्न के नाम से या कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के नाम से हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट असम्पशन है इसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। थर्ड आपके पास आ जाती है टाइम पीरियड। आपके पास आप किसी भी बिजनेस को जो है ना उसकी सही अगर प्रॉफिट या आप उसकी अगर सक्सेस, दो चीजें हैं यहां पे, सक्सेस है और उसका फेलियर है। किसी भी बिजनेस का अगर आप सक्सेस और फेलियर देखना चाहें तो उसको आप फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं? आप उसकी ओपनिंग और उसकी एंडिंग को जो है ना वो चेक करेंगे, फिर ही जाके आपको किसी भी ओपनिंग जब वो स्टार्ट हुआ था, एंडिंग जब वो बिजनेस बंद हुआ था, तो वी आर नॉट फॉर एवर। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से बिजनेस चलेगा, वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमारी लाइफ हम बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, मे बी 15, 20, 60 जो जितने भी सालों की बिजनेस चलता रहता है। तो हम उसका वेट कैसे करेंगे? तो हमें तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अंदाजा नहीं कर सकते हमारी लाइफ कब खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें जो है ना अगर बिजनेस की सक्सेस या फेलियर को देखना तो हम ओपनिंग देखेंगे और उसका एंडिंग देखेंगे। तब हमें जाके जब ओपनिंग और एंडिंग हमने इसको कंसीडर या एनालाइज कर लिया होगा, तब हमें जाके पता चलेगा कि ये बिजनेस सक्सेसफुल था या नॉट सक्सेसफुल था। तो अब बिजनेस ऑनर्स या अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं या अकाउंटिंग बोर्ड्स जो हैं आपके पास, उन्होंने आपको ये काम किया। अब उसके अंदर आपके पास अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि बिजनेस को आपने टाइम स्लॉट्स के अंदर अब चेंज कर दिया, ठीक है, कि यार आप किसी भी बिजनेस का सक्सेस या फेलियर देखना चाहते हैं तो हम पूरी जिंदगी या पूरे इस बिजनेस को ओपनिंग और एंडिंग तक तो हम नहीं देख सकते। तो हम क्या करें, हम इसके ओपनिंग और एंडिंग की बजाय हम क्या कर देते हैं, एक टेन्योर इसका ऐसा रख लेते हैं कि जिसके अंदर हमें पता हो कि यार इस टाइम पीरियड के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन बहुत कम हो जाती है, या बहुत हम इस टाइम पीरियड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो हम वहां पे जाके इसको जो है ना वो इसके प्रॉफिट और लॉस को, इसके सक्सेस और फेलियर को, इसकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को चेक कर सकें। तो हम इस लिहाज से फिर क्या करते हैं कि अपना जो बिजनेस जो है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बिजनेस तो कंटिन्यू है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इन्फिनिट पीरियड के लिए चल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा इस इन्फिनिट पीरियड को स्मॉल स्लॉट्स के अंदर जो है ना वो चेंज कर दूंगा। तो इसका लेट्स सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका ये वाला जो टाइम स्लॉट्स है ना, ये इसका एक टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करता है बिजनेस ऑनर, एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड, लेट्स सपोज 1 साल है, 1 मंथ है,
सीजनल टाइम पीरियड होते हैं, बाद कंपनी आती है सीजनल लेवल के लिए आते हैं। वो आइस फैक्ट्री है, लेट्स सपोज वो 4, 5, 6 मंथ के लिए आएगी, उसके बाद वो उसका जो है ना टाइम पीरियड वो खत्म हो जाएगा, या जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी देखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल इसका ये एक टाइम पीरियड है, हम इसको जिसके अंदर सारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, इनपुट होती है, रिकॉर्डिंग होती है, और एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड या एट द एंड ऑफ दैट स्लॉट्स आप क्या करते हो, उसकी जो है ना वो आउटपुट देखते हो, और वो आउटपुट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आती हैं आपको। तो आप उसका टेम्पररी तौर पे जो है ना वो उसको छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर उसकी स्लाइस बना के उसका टाइम पीरियड उसका बिल्कुल स्मॉल जो है ना वो करके स्लॉट्स बना के आप देखते हैं क्या सक्सेसफुल है बिजनेस के नहीं। अब यहाँ पे गाइस हमारे पास इसको हम एक अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट अकाउंटिंग साइकिल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो सीजनल प्रोडक्ट्स का 6 मंथ का हो सकता है, इस तरह नॉर्मली जो है ना 1 साल का टाइम पीरियड जो जनरली जो है ना कंसीडर किया जाता है, दिसंबर टू दिसंबर या जून टू जून, ये डिफरेंट किस्म के जो है ना आपके पास टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप जाके किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो आपके पास ये टाइम पीरियड 0 से 1। तो अब यहाँ पे एक चीज होगी कि आप उसकी कंप्लीट सक्सेस या फेलियर तो नहीं देख सकते, उसके अंदर इन एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी तो तब होगी जब उसको 0 पीरियड से लेकर उसके एंड पीरियड तक आप जब उसके सारे प्लस माइनसेस उसके जो है ना प्रॉफिट लॉस सबको जो है ना वो इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ना आप सक्सेस और फेलियर करेंगे, इसके अंदर इन एक्यूरेसी तो हो सकती है, लेकिन इन एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जनरली एक्सेप्टेबल इन एक्यूरेसीज हैं यहाँ पे। लेकिन आप उसके अंदर उसके सक्सेस और फेलियर को नेक्स्ट ईयर में आप कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर को चेक करते जाते हैं और इन एफिशिएंसीज को देखने जाते हैं, और फिर वहां पे जाके आप उसकी जो है ना आगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स हैं, उनको साथ साथ आप चेंज भी करते जाते हैं। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। तो ये सारी चीजें उसके सक्सेस फेलियर उसके अकाउंटिंग साइकिल के अंदर आप जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बजाय लॉन्ग टर्म के अंदर उसके सक्सेस फेलियर को देखने के, आप उसके जो है ना टाइम को स्लॉट्स वाइज आप देखते जाते हैं, और हर स्लॉट के एंड पे आप जो है ना उसका सक्सेस फेलियर चेक करते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग। तो ये टाइम पीरियड, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो आप इसको क्या करते थे, टाइम पीरियड, स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर उसके सक्सेस और फेलियर को चेक करते हैं। तो ये टाइम पीरियड प्रिंसिपल है, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पीरियड, फिस्कल ईयर या टाइम पीरियड प्रिंसिपल के तहत जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करते हुए। आगे है जी मॉनिटरी यूनिट। मॉनिटरी यूनिट के अंदर ये है कि आपके पास कोई भी चीज जो है उसको रिकॉर्ड, जैसे आपके पास लेट्स सपोज किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास डिफरेंट यानी मेजरमेंट टूल्स हैं, लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ मेजर होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ मेजर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कि आप किसी भी चीज की अगर आप उसकी अकाउंट फॉर उसको कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, उसको उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तो आप अगर किसी को केजी में करते हैं, किसी को गैलन में कर दें, किसी को मीटर्स में कर दें, दैट इज नॉट गुड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एजम्पशन हमें ये कहती है कि आप एक स्टैंडर्डाइज वे के थ्रू हर चीज की मेजरमेंट करें। अब बिजनेस के अंदर मशीनरी भी हो सकती है, आप ये तो नहीं लिखते कि एक मशीनरी, अब ये तो नहीं लिखते कि मेरे पास इतनी 1000 चेयर्स हैं, मेरे पास 1000 व्हाइट बोर्ड है, नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स को आप डिस्कस नहीं करते, आप हर चीज की रिकॉर्डिंग उसकी मेजरमेंट करते हैं मॉनेटरी टर्म के अंदर। मॉनेटरी टर्म के अंदर लेट्स सपोज आप डॉलर में कर लेते हैं, आप रुपीज में कर लेते हैं, आप युआन में कर लेते हैं, आप येन में कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो डिफरेंट किस्म की हर चीज की रिकॉर्डिंग जो होगी ना वो मॉनेटरी टर्म के अंदर होगी, और जिसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो है ना वे है टू मेजर दी ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस अजम्पशन को फॉलो करते हुए हर चीज की रिकॉर्डिंग बजाय उसके यूनिट्स में या किसी और वे में आपको स्टैंडर्डाइज वे में उसको मेजर करके आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताना पड़ेगा। देन यू कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द बाउंड्री विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। आप बात कर सकते हैं ड्यू टू द बिजनेस लैंग्वेज। आपने खुद इसको ये कहा है कि अकाउंटिंग इज द बिजनेस लैंग्वेज। तो मॉनेटरी टर्म के अंदर हर चीज की रिकॉर्डिंग होगी। ये प्रिंसिपल, ये असम्पशन हमने जो है ना वो अकाउंट को की है, तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है।
उसके बाद है आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हर चीज की रिकॉर्डिंग, जिस चीज को भी रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी दो किस्म की वैल्यू आ सकती है। एक उसकी मार्केट वैल्यू और दूसरी उसकी जो उसकी लेट्स सपोज हिस्टोरिकल कॉस्ट है या परचेजिंग कॉस्ट आप कह लें। तो आप देखो मार्केट वैल्यू पे द एनालिस्ट, द फाइनेंशियल मैनेजर और द प्रोफेशनल बॉडीज दे डोंट बिलीव ऑन द मार्केट वैल्यू बिकॉज मार्केट वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। So that's why they don't want to decide on the basis of market value. They only decide on the basis of purchasing cost या उसकी ओरिजिनल वैल्यू या उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। जिस कॉस्ट के ऊपर गाइस आपने किसी भी एसेट को, किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्स को बाय किया हुआ है तो आपको उसी के साथ जो है ना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है ना इंफॉर्मेशन को शो करवाना होता है। वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अजम्पशन भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक प्रिंसिपल है, एक अजम्पशन है कि एवरीथिंग शुड बी, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते, आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्ड करना पड़ता है हर चीज को। तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज रिकॉर्ड हुई नजर आ रही होती है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नजर आ रही होती है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर नजर आ रही होती है। ठीक है, तो वो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, लेकिन मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है किसी भी चीज की। इसलिए आप एक स्टेबिलिटी के लिए, एक जो है ना एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक स्टेबल चीज चाहिए, स्टेबल कॉस्ट चाहिए, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही आप जो है ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। अब है रियलाइजेशन आपके पास। रियलाइजेशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन अजम्पशन आपको क्या कहती है कि आपको लेट्स सपोज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू को रियलाइज कब किया जाएगा? ठीक है, आपके पास रेवेन्यू को रियलाइज कब किया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग अजम्पशन ये बताती है कि रेवेन्यू को जब आपने रियलाइज करना है तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के आपके पास वेज हैं। कुछ लोग जो है ना वो रेवेन्यू को, जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो एक एक्टिविटी या प्रैक्टिस चल रही है, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो है ना आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मार्कर है, आई एम गोइंग टू सेल दैट मार्कर, आई एम गोइंग टू सेल दैट मार्कर इन द मार्केट। जैसे ही ये कंपनी या उस शॉप से ये मार्कर आउट होगा, कोई और पर्सन इसको बाय करेगा, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ सेल। जैसे ही ये सेल होगा, मैं इसको कितने का सेल हो गया, लेट्स सपोज 20 रुपए का सेल हुआ है या 40 रुपए का सेल हुआ है या $40 का, $10 का ये सेल हुआ है, तो अब इसको मैं एज ए $40, $10 या $1 जितने का भी है उसको एज ए रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर लूंगा। तो वो है पॉइंट ऑफ सेल। अब डिफरेंट किस्म की जो है ना रेवेन्यू को रिकॉर्ड जो है ना रियलाइजेशन होती है। जैसे आपके पास है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप समझ लें। लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल आपको देता हूं कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके वहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी साल 2 साल 3 साल उसके जगह प्रोजेक्ट पे बेस करता है, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी जगह पे काम कर रही है, तो उसकी जो आपके पास जो रिकॉर्डिंग है उसकी रियलाइजेशन, वो रेवेन्यू कब रियलाइज करेगा? वो 2 साल 3 साल का इंतजार करेगा नहीं। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो साथ साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपको उसकी रेवेन्यू रियलाइजेशन क्या है, ड्यूरिंग दी प्रोसेस ही है। आपको अभी उसकी प्रोडक्ट जो एक पूरी बिल्डिंग थी वो नहीं बनी, लेकिन वो साथ साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करती जा रही है। इट इज अलाउड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपके पास लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रेवेन्यू। तो रियलाइजेशन के डिफरेंट आपके पास व्हेन प्रोडक्शन जब हो जाए, कंप्लीट, जब आपने प्रोडक्शन कंप्लीट कर ली, एक प्रोडक्ट जो है ना वो बन गई है, उसके अंदर आपने गाइस आपको ये पता होना चाहिए, आपको मार्केट का पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्राइस ये है, ये चेंज नहीं होगी, तो आप उसको एज ए रेवेन्यू भी रिकॉर्ड, आप उसकी प्राइस अगर आपको पता है, प्योरली पता है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप एज ए रेवेन्यू उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म की रियलाइजेशन है, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब बात ये होता है, जैसे आपके पास
कोई और कॉस्ट, आप किसी स्पेकुलेशन करते हैं, आप किसी गोल्ड या किसी बड़ी जो है ना वो बिजनेस के अंदर आप जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे तो आपको अभी नहीं पता, उस वक्त आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करते हैं जब तक आप अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर लेते, तो वो उसकी रियलाइजेशन तब होगी। जैसे गोल्ड कि आपने अभी उसके गोल्ड को अभी आप उसको यानी प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करने के बाद आपने उसको मार्केट के अंदर सेल करना है, तो वो एक पूरा प्रोसीजर है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यानी आपको देखना पड़ेगा कि जब तक आप उसकी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर लेते उस वक्त तक आपका रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता। तो ये है गाइस रेवेन्यू रियलाइजेशन। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं कि जैसे ही चीज कंपनी से आउट हो जाएगी तो आपको उसी वक्त उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब है गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैचिंग का। मैंने अभी रियलाइजेशन को इरेज नहीं किया इसलिए कि जैसे ही रेवेन्यू आपने जो है ना वो अर्न किया है तो इसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कुछ कॉस्ट भी बियर की है, ठीक है। तो जब हम रेवेन्यू और उससे रिलेटिव का लेट्स सपोज मैं कहता हूं रेवेन्यू एक टाइम पीरियड, लेट्स सपोज 0 एक टाइम पीरियड है या 1 टाइम पीरियड है, आपने उसके अंदर रेवेन्यू किया, तो आपने एक टाइम पीरियड लेट्स सपोज ये 0 है, आपके पास ये R1 रेवेन्यू है, ये आपके पास R2 रेवेन्यू है, उसके अगेंस्ट आपके पास कॉस्ट भी आपके पास लेट्स सपोज C1 और C2 के अगेंस्ट आपके पास कॉस्ट भी जो है ना वो आपके पास कॉस्ट भी जो है ना आपके पास क्या हो जाएगी, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपके पास उसको भी साथ साथ रिकॉर्ड किया जाएगा और आप मैच करेंगे। जो आप ये नहीं कर सकते कि आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू आपके पास जो है ना वो रेवेन्यू जो है ना वो पीरियड 2 का है और कॉस्ट जो है ना वो पीरियड 1 की है। इस तरह आप ये भी नहीं कर सकते कि आपका रेवेन्यू जो है ना वो पीरियड 1 का है और कॉस्ट पीरियड 2 की है। तो आपका जिस साल का रेवेन्यू है, जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू है, उसी टाइम पीरियड के साथ आपको उसकी कॉस्ट को भी मैच करना पड़ेगा। उस आपने कुछ ना कुछ बियर किया है। जिस साल का आपके पास सेकंड ईयर का रेवेन्यू है तो सेकंड ईयर के कॉस्ट को तो मैचिंग जो है ना वो ये वाली चीज मैचिंग कहलाएगी कि आप डायरेक्टली जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू है उसी टाइम पीरियड के कॉस्ट के साथ आप उसको मैच करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो आपके पास ये आपके पास क्या कहलाता है जी, मैचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस व्हाट? आप कंसिस्टेंसी मींस कि आप लेट्स सपोज अकाउंटिंग के अंदर एक चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज की जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर आप उसको क्या करेंगे, आप एक मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूं COGS, एक कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आपने चीजें सेल आउट की हैं उनकी कॉस्ट आपको कितनी बियर करनी पड़ी है, तो उसके लिए आपने डिफरेंट किस्म की मेथोडोलॉजी उसके अंदर यूज होती है। लेट्स सपोज आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं LIFO मेथड या FIFO मेथड, ये डिफरेंट मेथड हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक टाइम पीरियड 1 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टाइम पीरियड 2 है, ये 1 पीरियड है, ये 2 पीरियड। यहाँ पे आप LIFO अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट पीरियड के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, LIFO ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप FIFO अडॉप्ट कर रहे थे तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, FIFO ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप LIFO या FIFO आप ये नहीं कर सकते कि LIFO के बाद आप डायरेक्टली ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लो, या यहाँ पे अगर आपने FIFO किया तो इधर LIFO अडॉप्ट कर लो। इस तरह डेप्रिसिएशन के मेथड हैं डिफरेंट किस्म के। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी अगर आपने प्रोसीजर, टेक्निक, मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है एक टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर भी वही मेथोडोलॉजी, वही प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है। देन यू कैन कंपेयर। अगर आप एक साल और दूसरे साल को कंपेयर करना चाहें, अगर पिछले 2-3 साल अगर आपने मेथोडोलॉजी चेंज कर दी तो देन देयर वुड बी नो पर्पस फॉर कंपैरिजन। आप कंपेयर नहीं कर सकते, आपका कंपैरिजन वो रॉन्ग हो सकता है। तो आपके पास ये चीज चल रही होती है, तो इसको हम किस नाम से देखते हैं, कंसिस्टेंसी। सो देयर शुड बी कंसिस्टेंट प्रोसीजर, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ये कंसिस्टेंसी कहलाती है। उसके बाद है आपके पास मटीरियलिटी। आपके पास मटीरियलिटी क्या चीज है जी? मटीरियलिटी ये है कि आपके पास
कोई भी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रोड्यूस की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करते हुए, प्रोसेस को यूज करते हुए, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कौन पढ़ता है? शेयर होल्डर पढ़ते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो पढ़ते हैं। अगर तो आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी है और वो इंफॉर्मेशन उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर दी, जो रीडर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जैसे शेयर होल्डर है, स्टॉक होल्डर है, इन्वेस्टर है, वो जो रीडर, उनको कोई जो है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही वो इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन इमैटेरियल है। हर वो चीज इमैटेरियल है जिसका कोई फायदा या नुकसान आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या आपके बिजनेस को जो है ना वो ना हो, तो वो इमैटेरियल है। मटेरियल, हर वो चीज मटेरियल है जो इन्फ्लुएंस करे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो उस इंफॉर्मेशन को आप जो है ना वो रिकॉर्ड मस्ट करेंगे। जो इन्फ्लुएंशियल है, वो जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो वेरीफाइएबल है, उसको हम जो है ना वो क्या करेंगे, मटेरियलिटी के कंसेप्ट के तहत आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो वेरीफाइएबल नहीं है और जो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है और जिसका कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है रीडर के ऊपर, जो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाला है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि दैट इंफॉर्मेशन इज इमैटेरियल, सो देयर इज नो नीड टू शो दैट इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, मटेरियलिटी के अंदर देयर इज assumption, so you will have to record all the material information which is objective and which is verifiable। तो ये आपके पास मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। आपके पास नेक्स्ट है जी कैश बेस। आपके पास कैश बेसिस, आपके पास कोई, अब यहां पे दोबारा मैं आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस की एग्जांपल दूंगा कि आपके पास कैश बेसिस, अगर आप सारा अपना लेन देन जो है ना वो, जैसे आप कहते हो कि भाई मेरी अगर बिजनेस में आना है तो मैं क्रेडिट पे काम नहीं करता, मैं उधार पे काम नहीं करता, मैं प्योरली कैश पे काम करता हूं, तो उस वक्त उसका रेवेन्यू तब ही रिकॉर्ड होगा जब उसको कैश मिलेगा। उसके एक्सपेंस अगर वो जब वो रिसीविंग करेगा पैसों की सूरत में तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। जब वो किसी को पे करेगा एक्सपेंसेस अखराजात जो उसने बियर किए हैं इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए या वैसे किसी को पे करने के लिए, तब वो अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। अगर उसने पैसों की सूरत में कैश के फॉर्म में अगर पेमेंट नहीं की तो वो उसका ना रेवेन्यू होगा और ना ही उसका एक्सपेंस होगा। अगर उसने दोनों सूरतों के, अगर वो रिसीविंग नहीं कर रहा कैश के अंदर, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा कैश के अंदर, तो वो उसका रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कैश बेसिस के। आप सारी ट्रांजेक्शन को प्योरली कैश बेसिस के अंदर चला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है जी कैश बेसिस अकाउंट। उसके बाद है जी आपके पास अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या है कि आप अपने जितने भी कैश के बगैर, विदाउट कैश आप कारोबार का लेन देन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग भी कहते हैं। यानी आपके पास अब आपने लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये मार्कर, आई एम गोइंग टू सेल दैट मार्कर, तो जैसे ही आपका ये मार्कर मार्केट के अंदर या शॉप के या किसी भी बिजनेस के अंदर आपने मार्केट से बाहर या अपनी फर्म से बाहर ये मार्केट यानी सेल आउट किया, बाहर फ्लो कर दिया, तो आप उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर लेंगे वेदर यू आर रिसीविंग कैश और नॉट। ठीक है, अगर आप कैश नहीं रिसीव कर रहे हैं तो वो रिसीवेबल होंगे, इन फ्यूचर यू कैन रिसीव दैट अमाउंट, तो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही आपने एक्टिविटी परफॉर्म की रेवेन्यू से रिलेटेड या कोई एक्सचेंज कर ली बेनिफिट से रिलेटेड, तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको पैसे बेशक बाद में मिल जाए। इसी तरह एक्सपेंसेस भी आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही आपके एक्सपेंस अकर हुए। जैसे एक बंदे ने आपके बिजनेस के अंदर काम किया वर्कर के तौर पे, और वो वर्कर जो है ना वो सैलरी पे काम कर रहा है, आपने उस मंथ उससे काम करवाया, लेकिन उसने कहा यार सैलरी नेक्स्ट मंथ ले लेना, तो वो जो एक्सपेंस होंगे आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की वजह से, अक्रूवल बेस की ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट आप कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंस आप पैसे लें या ना लें, पैसे दें या ना दें, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ड्यू टू अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, जो हमें असम्पशन कहती है कि जैसे ही आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कैश में कर रहे हैं या विदाउट कैश कर रहे हैं, विदाउट भी कैश कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, रियलाइज करें। तो गाइस ये था हमारे पास ट्रेडिशनल असम्पशन अकाउंटिंग के अंदर जो यूज होती हैं जब आप कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अपनी एंट्री करते हैं, तो इन सारी चीजों को आप सामने रख के ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम कोई और चीज ट्रांजैक्शन एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप यू हैव रियली फेमिलियर विद दिस प्रिंसिपल्स और दिस अकाउंटिंग असम्पशन,
नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हम जो है ना वो देखेंगे. तो आई होप यू रियली अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. थैंक यू सो मच.